So class 9, today we are going to start the topic that is merits and demerits of sole proprietorship. merits means जो हमें उससे जो भी benefits हैं, और demerits means whatever the losses we are having, the person is having who is having sole proprietorship, right? So merits of sole proprietorship and demerits of sole proprietorship we are going to discuss. So yesterday we have completed meaning and the features. Today we will discuss the merits and demerits. So first we will go with the merits of sole proprietorship. Means what are the benefits from sole proprietorship, right? So if we talk about the advantages or the benefit of the sole proprietorship, so very important thing, that it is very easy to start and dissolve. Easy to start and dissolve. Means children, a sole proprietorship. Already we know that what is sole proprietorship. So if sole proprietorship we are talking about, so a sole proprietorship can be set up very easily. There is no legal formalities are required. There is no any typical process is required to start sole proprietorship. Right? So a sole proprietorship can be set up very easily and quickly. No legal formalities and no such kind of expenditures are involved in the establishment of sole proprietorship. There is no need to associate others or to enter into any agreement. कि कोई agreement करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई license लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी special के अगर कोई special case ना हो, ठीक है, जैसे आपको कोई मेडिसिन का बिजनेस करना है या मेडिकल स्टोर खोलना है, इस तरह की, तो इसके लिए तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मेडिसिन, राइट? तो कुछ स्पेशल केसेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एसोसिएट अदर्स एंड टू टेक मीन्स इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशल case. Right? The proprietor can start the business operations as when he desires. जब उसको जरूरत हो, जब कोई proprietor चाहे तो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? सिमिलरली a sole proprietorship can be closed very easily and quickly. जब भी वो चाहे तो अपने बिजनेस को इजिली क्लोज कर सकते हैं, उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी या कुछ भी अनदर प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती. तो फर्स्ट जो मेरिट है, जो एडवांटेज है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसका एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी इजी टू एस्टेब्लिश, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, as no legal formalities and such kind of expenditures or agreement is required to establish a sole proprietorship. Okay, now the second point is motivation to work. Motivation to work. Here we can see that the proprietor is solely responsible for everything. The proprietor alone he entitled to receive all the profit of the business and alone he bear all the losses. ठीक है? तो इससे क्या होता है? There is a direct relationship between efforts and reward. कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है? मैं ही जो हूं एफर्ट कर रही हूं और उसके बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो मैं ही लूंगी, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना. इफ आई एम इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सो क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मीन्स एफर्ट्स, वट एवर द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स. जो हमारे एफर्ट्स होंगे करने के, उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा,
दैट इज रिवॉर्ड. सो देयरफॉर देयर इज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड. जब मुझे ये पता होगा कि ये जो भी मैं काम कर रही हूं दैट आई विल गेट ओनली, तो क्या होगा, वी विल डू मच हार्ड वर्क, राइट. एंड द प्रोपराइटर जो ओनर होगा दैट विल बी मोटिवेटेड टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द स्किल्स एंड द रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. जब मुझे ये पता है कि जो मेरे एफर्ट्स हैं उसी से मुझे प्रॉफिट मिलना है, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा स्किल्स अपनी यूज करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके. इज इट क्लियर? All right. Now the third point is the quick decisions. Third point. As we all know that the sole proprietor is completely free to take the decisions and to implement them because that person is the whole soul of the business, right? He need not to consult with another person that what I have to do or what I don't have to do. क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता हूं, वो डिसीजन लेने के लिए उसे किसी की भी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है. The sole proprietor is completely free to take the decisions and to implement that. डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, both the things, right? So if we talk about the quick decisions and prompt action help to improve the efficiency of the business operations. जब हमें प्रॉम्प्ट एक्शन हम ले सकते हैं जो, और दूसरी बात जो डिसीजंस हैं जब हमारे होते हैं तो टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम वी कैन मैनेज द थिंग्स. अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हैं तो अगर हमें उस समय क्विक डिसीजन की जरूरत है और देन वी हैव टू कंसल्ट विद समवन टू whom we are accountable, right? तो अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की तो द सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली फ्री टू टेक द डिसीजंस एंड टू इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस, राइट. ही नीड नॉट टू कंसल्ट विद अदर्स टू सीक देयर अप्रूवल कि मैं क्या ये काम कर सकता हूं या मैं ये काम नहीं कर सकता हूं. उन्हें किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है. इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है और जो बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने की चीजें होती हैं वो भी टाइम टू टाइम हो जाती हैं. क्यों? बिकॉज द पर्सन, द सोल प्रोप्राइटर डजंट हैव टू कंसल्ट विद एनीवन. ही इज होल सोल ऑफ द बिजनेस एंड ही हैज टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑन देयर ओन. इज इट क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल. जहां हम लोग जो देख रहे हैं घूम फिर के बात वही आ रही है बार बार, दैट ऑल द थिंग्स इज डिपेंड अपॉन द सोल प्रोप्राइटर और द ओनर ऑफ द बिजनेस. तो फोर्थ थिंग इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल. जैसे कि नाम से ही है सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला खुद का पर्सन. सो द सोल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द बिजनेस. बिजनेस के ऑल द मैटर्स, सारे मैटर्स को लेके एक सुप्रीम जज वही होता है. इसका मतलब ये है ही एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन. नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंपाइल्ड विद, नोबडी कैन इंटरफेयर इन हिज वर्क और इन देयर वर्क. He exercised control over all the function of the business. Authority and responsibility are visited at the same place. Person supervision help to improve the efficiency of the business. कहने का मतलब ये है simple language में, the sole proprietor is the supreme judge of all the actions, all the matters pertaining to the business. Business के सारे matters के को लेके, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी पर्सन को अगर आपने रख रखा है तो उसको पैसे देना या सैलरी प्रोवाइड करना या हमें बिजनेस में और क्या और चीजें इंक्रीज करनी है, ये सारी चीजों का डिसीजन किसके हाथ में होता है? सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होता है एंड दैट पर्सन इज अ सोल प्रोप्राइटर. ओके, एंड उसको कंप्लीट फ्रीडम होती है अपने बिजनेस में कोई भी एक्शन लेने की कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. दैट ही कैन डिसाइड, ही और शी कैन डिसाइड.
He doesn't have to take any approval from anyone. And yes, one more thing, nobody can interfere in their work, because that person only is the whole soul of the business. He exercises all over the control and all over all the functions of the business, and he carries all the authorities and responsibilities at the same person को सारी authorities हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको उठानी है, एक एक काम उसको अपने बिजनेस का खुद से करना है, उसको सारी पावर्स भी उसी पर्सन को हैं, और सारा कंट्रोल बिजनेस का उसी इंसान के हाथ में है जो सोल प्रोप्राइटर है. राइट? क्लियर? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स. Secrecy of affairs. Secrecy of affairs means the sole trader is not required to publish his account. उसे अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना होता है. जो भी चीजें उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें पब्लिश नहीं करना पड़ता है. वेदर इफ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक को शो करने होते हैं. ठीक है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो करने होते हैं. तो जो भी चीजें हैं, द सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट. ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स. मीन्स उनके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उन्हें पब्लिक को शो नहीं करने कि कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, कितनी उनकी एसेट्स हैं, कितनी उनकी लाइबिलिटीज हैं. ठीक है, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स फ्रॉम अदर्स. कंप्लीट सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स प्रोवाइडेड हिम ग्रेटर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ. क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स कहीं पब्लिश नहीं करने होते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज कहीं रिवील नहीं करनी होती हैं, उन्हें अपनी चीजें कहीं बतानी नहीं होती हैं, सारी चीजें सीक्रेट रहती हैं. इससे क्या होता है, उनका जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है. जब उन्हें कोई चीज बतानी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सामने वाला पर्सन ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि आप किस हद तक एफिशिएंट हो. अब मान लीजिए आप अपने बिजनेस की एसेट्स और बिजनेस की लाइबिलिटीज को पब्लिश करते हो, तो कॉम्पिटिटर को तो ये मालूम हो जाएगा ना कि इस बिजनेस की हद इतनी एसेट्स और इतनी लाइबिलिटीज तक है, या उनकी स्किल्स इतनी है. राइट? सो इसलिए कहा जा रहा है कि कंप्लीट सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स प्रोवाइड हिम और पर्सन ऑफ सोल प्रोप्राइटर अ ग्रेटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ओके, देन दैट इज द सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स. नाउ द पर्सनल टच. Sixth point is personal touch. Personal touch. The sole proprietor can maintain personal contacts with his customer and employees. He can, you can say, he can cater to the requirements of each and every customer. He can also build healthy relation with his employees. एक चीज होती है बेटा कि जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, तो जैसे आपके सिंपल अगर लैंग्वेज में आपके बात करें कि जैसे आपके आसपास के जो बिजनेसमैन हैं या फिर आपके आसपास की जो रिटेलर्स की शॉप है, दे आर ऑल्सो अ सोल प्रोप्राइटर. मतलब वो अपना छोटा सा ही बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एक सिंगल ओनर है अपने बिजनेस के. ठीक है, तो क्या होता है, द सोल प्रोप्राइटर वो क्योंकि सिंगल ओनर है, सो दे कैन मेंटेन द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स. वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, और जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी पर्सनल कॉन्टैक्ट और हेल्दी रिलेशंस बना सकते हैं. उन्हें ये चीजें क्या होता है, ही कैन कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर. वो पर्सन है सोल प्रोप्राइटर, दैट पर्सन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द customer, to fulfill all the requirements of the customer, because all we know that the customer is the kingpin of society. customer के satisfaction से सारी चीजें ही निर्भर करती हैं. तो he can, you can say that cater of the requirement to each and every customer. He can also build the healthy relation with his employees. जो employees उसके आगे, अब कभी हो सकता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ी उसकी शॉप है, तो हो सकता है वो एक आध वर्कर्स को रखे. ठीक है, तो वो कौन होंगे, वो उसके एम्प्लॉयज होंगे, वो उसके पार्टनर नहीं होंगे. वो कौन होंगे, वो उसके एम्प्लॉयज होंगे. वो उसको क्या देगा, सैलरी देगा, अपना प्रॉफिट नहीं देगा, वो एक पर्टिकुलर अपनी उन लोगों को सैलरी देगा. सो
उनसे भी एक हेल्दी रिलेशन, एम्प्लॉयज जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनसे भी हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सकता है. तो हियर वी कैन से दैट द सोल प्रोपराइटर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. 7th point, yes, of course. First flexibility of operation, then personal touch. Flexibility of operation. A sole trader or business is usually small in size and simple in structure. यूजुअली जो सोल प्रोपराइटर है वो हमारी कम कैपिटल इन्वेस्ट होती है उसमें, और उसमें जो वो होता है वो स्मॉल साइज होता है और सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है. इट कैन देयरफॉर बी एडजस्टेड इजिली व्हेनेवर नेसेसरी. राइट, द प्रोपराइटर कैन इजिली एक्सपैंड और रिड्यूस हिज बिजनेस ऑपरेशन टू सूट द चेंजिंग कंडीशन इन द मार्केट. सपोज एज वी नो दैट मार्केट इज फ्लक्चुएट, मार्केट कैन फ्लक्चुएट. ठीक है, ये एक ऐसी फ्लक्चुएशन मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है. कभी मार्केट में चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी एकदम से कम हो जाते हैं. तो जो बड़ा बिजनेस है उसको अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर हम क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसकी एक टिपिकल प्रोसेस हो जाएगी. जैसे पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं साथ में. ठीक है, तो अगर वो साथ में, तो भाई जाहिर सी बात है सबसे हमें परमिशन लेनी है, सबसे हर चीज के बारे में कंसल्ट करना है, ये करें या ना करें, ये सारी चीजें. लेकिन अगर हम सोल प्रोपराइटर की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा चेंजेस ला पाना. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, काम में की कंडीशंस में या काम के तरीके में चेंजेस ला पाना. ऑपरेशंस मीन्स जो काम आप कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, चीजों को संचालन कर रहे हो. ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मीन्स to make changes. So a sole proprietor business is usually small in size and simple in the structure. Because of that simple structure, it can therefore be adjusted easily whenever it is necessary. Because market is you can say that the condition of the market used to change. It keeps changing. So according to that changes, sole proprietor can manage their things. They can easily expand their business. They can easily reduce his business operations to suit the conditions of the market. मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है और स्मॉल साइज बिजनेस है, इसलिए उसमें जो मैनेज करने की चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं. इसलिए कहा जाता है कि सोल प्रोपराइटरशिप जो है देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन में फ्लक्चुएशन या फिर ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन में चेंजेस लाना मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 8, इकोनॉमी. 8 point, economy. Economy, the proprietor is the owner, as we know that person is the owner and manager and controller all the things. Economy, the proprietor is owner, manager and controller of the business. है? Yes or no? Yes, ma'am. So क्योंकि प्रोपराइटर जो है वो अपने बिजनेस का कंट्रोलर भी है, मैनेजर भी है और जो है वो फाइनेंसर भी है. फाइनेंसर मतलब जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है. ठीक है, तो इसके लिए ये होता है कि उसको ना ही अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर की जरूरत पड़ती है, ना ही उसको अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए किसी कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, या किसी भी ऐसे वेरियस फंक्शंस होते हैं जिसके लिए लोग अपने बिजनेस में लोगों को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स अपॉइंट करते हैं, सेल्स मैनेजर अकाउंट करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं. लेकिन here he does not appoint specialist for these various functions.
क्यों? बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, एंड यू कैन से दैट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप इज इनएक्सपेंसिव. कैसे? सारी चीजें मैनेजमेंट कह दिया. अगर आप इसकी बात करें तो मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंट्रोल, ये एंड फंक्शंस, ये सारी चीजें कौन देख रहा है? सिर्फ एक सोल प्रोपराइटर देख रहा है. राइट? दैट ओनली अ सोल प्रोपराइटर इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स. तो क्या है? ये कम एक्सपेंसिव है. ये बिजनेस क्या है? कम एक्सपेंसिव है. सो द मैनेजमेंट और सोल प्रोपराइटरशिप इज इनएक्सपेंसिव. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज एन इकोनॉमी. Next is the social utility. The last point is social utility. What do you understand by social utility? Ninth, the social utility. Beta, social utility, that sole proprietor provide an opportunity for gainful self-employment to persons with limited money. It offers a way of earning an honorable living. जैसे सोशल यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब ये आया कि they are their means in their self, ये they can we can say that they are the owners. ठीक है? अपना खुद का काम है उनका. They are owners. They are not working with anyone. They are not working under any person. Am I clear? This thing, sole proprietorship provides an opportunity for the gainful self-employment to person with limited money. Limited money के अंदर self-employment, ये अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करता है? सोल प्रोपराइटरशिप प्रोवाइड करती है. It offers a way of earning an honorable living to those who do not want to work under others. जो लोग किसी पर्सन के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कम पैसे में सेल्फ ओनर होने की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की. ठीक है? और अगर हम बात करें, इट इज फैसिलिटेट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इट लेंड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज सच एज you can say self-reliance, initiative and responsibility. Sole proprietor provides equal opportunity to everyone to use their resources and talent to the maximum advantages. कहने का मतलब सिंपली ये है सेल्फ सोशल यूटिलिटी में कि सोल प्रोपराइटरशिप जो है, दे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स विद लिमिटेड मनी. लिमिटेड मनी के अंदर बिजनेस को, खुद के बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, यानी हम क्या कहलाएंगे? बताएं. अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो वी आर ओनर्स. वी आर ओनर्स. सो वी आर नॉट वर्किंग एनीवन. वी आर ओनर्स. वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनीवन और वी आर नॉट वर्किंग अंडर एनीवन. हम लोग क्या हैं? जो लोग सेल्फ सोल प्रोपराइटर हैं, दे आर द वे ऑफ अर्निंग. इट इज वेरी honorable because these people are owner. So it creates social utility because क्या होता है? माइंड सेटअप होता है बेटा. तो चीजें जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे. दैट कि अगर आप मान लो कि हो सकता है किसी के माइंड में ये चीज हो कि बहुत पैसा कमाना है, तो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर किसी के पर्सन के दिमाग में ये चीजें हैं कि नहीं, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है. ठीक है? अब सोल प्रोपराइटरशिप तो आप जान रहे हो. सोल प्रोपराइटरशिप में क्या है? नोबडी कैन मीन्स कैन जज यू, नोबडी कैन कंट्रोल ओवर यू, nobody can manage your things. Only you are whole soul of the business. So that's why it is called that sole proprietorship that provides an opportunity for the gainful self-employment to the person. Self-employment means हम खुद अपने बिजनेस के ओनर हैं, हम खुद का काम कर रहे हैं. राइट?